Welcome to GPC online lecture. In this lecture, we are going to discuss about moving iron instruments. In Unit 4, we are going to discuss about moving iron instruments. Attraction type moving iron in ammeter and voltmeters. In previous lecture, I already told that there are two types of meters: permanent magnet moving coil meter and moving iron meter. First one is PMMC. Second one is moving iron. Permanent magnet moving coil. Second one is moving iron. In this further there are two classifications: moving iron attraction type and moving iron repulsion type. So in this video we are going to discuss completely about this attraction and repulsion type moving iron meters. Here if you see the principle of operation, the attraction type instrument operates on the principle that if a piece of soft iron which has not been magnetized is brought up to either end of the magnet, it will always be attracted by magnet. Now here I am keeping one magnet. This is magnet actually, but what I am doing is दिस इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेट मीन्स जब हम लोग सप्लाई देंगे तभी ये एक चंबक जैसा काम करेगा. जब हम लोग सप्लाई को बंद करेंगे ये वो चंबक का ताकत जो है निकल जाएगा. इसको कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट. नो आई हैव केप्ट लाइक दिस हियर and here I am taking one small iron piece. This is connected to a spring. Okay, I have fixed like this. When we give this supply, means when we switch it on, ये एक चंबक जैसा काम करेगा, इसको खींचेगा. ठीक है. जब मैंने सप्लाई को ऑफ कर दिया तब क्या करेगा, ये स्प्रिंग के चलते ये पीछे चले जाएगा. दिस अट्रैक्शन टाइप principle we are going to use in moving iron attraction type ammeters and voltmeters. Here you can see the diagram. Attraction type moving iron instrument. This is the coil. This total portion is hollow. मतलब एक ऐसा रहेगा. ऐसा रहेगा. इसके ऊपर एक और छोटा सा लेयर रहेगा. यहां हम लोग वाइंडिंग किया है. ये कॉइल एक सिलेंडर के जैसा रहेगा. इन दिस here we gave some winding, that is here you can see coil winding. We gave some winding, that is coil winding, and then we are going to connect this meter like this. Suppose we have to measure this voltage. We will connect like this, and here when we switch it on, it will become एज ए मैग्नेट. ये पूरा जो सिलेंडर है मैग्नेट जैसा हो जाएगा. इसके चलते यहां जो पीस है, दिस इज द मूविंग आयरन पीस. व्हाट इट विल डू, इट विल बी अट्रैक्टेड इनसाइड. व्हेन इट इज मैग्नेटाइज्ड, ये जब एक चंबक जैसा इसके अंदर ताकत आएगा, इसको अंदर खींचेगा. इसके चलते पॉइंटर यहां से रीडिंग हम लोग को दिखाई देगा. This is the moving iron attraction type working principle. Remaining all we know, this is a pointer. Here we are going to use one weight. The weight is, here you can see this is a this is gravity control. We are using here gravity control, and here we have
एयर डैम्पिंग चैम्बर, मतलब यहाँ हम लोग एयर डैम्पिंग को यूज कर रहे, एयर डैम्पिंग यूज कर रहे। और ये जो है स्केल, दिस इज द मूविंग आयरन attraction type instrument. If you clearly see the construction, deflection system, it consists of a fixed coil C and oval shaped thin soft iron disc D, eccentrically mounted on the spindle, pivoted on both sides between the jewel bearings. So this is kept between two jewel bearings. Here we have pivoted spindle. अभी हम लोग पीछे देखा है वो स्लाइड में, वही यहाँ कॉइल है और स्पिंडल है, स्पिंडल के ऊपर पॉइंटर, वेट, डैम्पिंग सिस्टम सब रखा हुआ है। The spindle as usual carries the pointer and balance weight W2. The spindle is having control weight and balance weight. If you see, two weights were there. When the pointer is like this, here we are going to keep some iron piece, and here यहाँ एक weight था, यहाँ एक और weight था। एक जो है ये है बैलेंस कंट्रोलिंग वेट है, ये कंट्रोलिंग टार्क को प्रोड्यूस करने के लिए, ये जो है बैलेंस के लिए। दिस इज हाउ इट इज कंस्ट्रक्टेड। नेक्स्ट वन इज कंट्रोलिंग सिस्टम। यहाँ हम लोग ग्रेविटी कंट्रोल को यूज कर रहे हैं, लेकिन नया इंस्ट्रूमेंट्स में हम लोग, ये पुराना इंस्ट्रूमेंट है, हम लोग ज्यादा ग्रेविटी कंट्रोल यूज किया है, लेकिन अभी हम लोग ज्यादा इस स्प्रिंग कंट्रोल के बारे में सोच रहे। इन मॉडर्न, वो पुराना में बहुत हम लोग ग्रेविटी यूज कंट्रोल यूज किया है। इसका प्रॉब्लम क्या है कि केवल हम लोग मीटर को ऐसे ही रख के संभालना है। अगर हम लोग मीटर को थोड़ा ऐसा करेंगे, अभी इससे काम करेंगे, ये नहीं चलेगा। ऐसा है मीटर, अभी नापेंगे, ये काम नहीं चलेगा। हर समय केवल ऐसा वर्टिकल में रहना है, यही इसका दिक्कत है ग्रेविटी कंट्रोल का। इसके चलते हम लोग नया इक्विपमेंट्स में क्या किए हैं, स्प्रिंग कंट्रोल भी यूज कर रहे। टू पॉज पर ब्रॉन्च स्पाइटल हेयर्स रिंग्स spring, sorry, the not ring, spring, okay, sorry, hair spring are used for this purpose. And next, if we discuss about damping system, here we are going to use, damping is provided by a piston P attached to the spindle and moving in air chamber. So we already discussed about this damping torque. Here it is provided with air damping system. There we have one piston, all these chambers. एक्चुअली हम लोग एडी करंट डैम्पिंग भी यहाँ यूज कर सकते हैं, लेकिन यह जो आयरन पीस जो है, अगर एडी करंट डैम्पिंग यूज करना हो तो हम लोग एक और मैग्नेट को लगाना है, डिस्क लगाना है। ये मैग्नेट जो है, अभी जो मैग्नेट अट्रैक्ट कर रहे हैं, इसका काम को बहुत गड़बड़ कर देगा। The presence of a permanent magnet required for such purpose would affect the weak operation field and therefore the deflection of the pointer. Means if we use the eddy current damping, there we have to provide one more magnet. That magnet will affect the, अभी जो अंदर एक मैग्नेट से काम चल रही है, इसको अंदर खींच रही, जब हम लोग सप्लाई दे रहे, हम लोग को रिकॉर्डिंग वैल्यू दे रही। अगर हम लोग एडी करंट डैम्पिंग यूज करना, तो वहां हम लोग एक डिस्क लेना है और नया मैग्नेट लेना है। वो मैग्नेट, अभी जो मैग्नेट काम कर रहा है अंदर अट्रैक्शन का, ये काम को डिस्टर्ब करेगा। इसके चलते हम लोग मूविंग आयरन में कभी भी
ये वाला को यूज नहीं करते हम लोग। ऑपरेशन ऑलरेडी टोल्ड, जब हम लोग एक कॉइल को सप्लाई दे दिया है, ये एक चंबक जैसा बनेगा पूरा सिलेंडर। When the coil is excited in this manner, it becomes an electromagnet and attracts the eccentrically mounted shaft iron piece disc inwards. जब हम लोग सप्लाई दे देंगे वो अंदर खींचेगा। This result into the deflection of pointer over a calibrated scale. जब ये चंबक आयरन पीस अंदर आ रहा है चंबक के अंदर, ऊपर पॉइंटर रीडिंग दिखाना शुरू करेगा। स्केल के ऊपर हम लोग वो रीडिंग देख सकते हैं। The force with which the iron disc is attached independent on the relative pole strength and the coil which works as an electromagnet and magnetized iron disc. So these are going to work all. And here how much the pointer is going to move, it depends on the how much supply we are giving. How much this pointer will give, it depends on the voltage. If we give more voltage, it will go more and it will show more reading. The pole strength in turn are decided by the field strength produced by the current passing through the coil. How ये कितना फील्ड को प्रोड्यूस करेगा, वो हम लोग कितना सप्लाई दे रहे हैं उसके चलते प्रोड्यूस करेगा। Next we are going to discuss about repulsion type, moving iron, ammeters and voltmeters. पहले हम लोग अट्रैक्शन टाइप के बारे में देखा है। वहां ये चंबक को अंदर खींच रहा है, चंबक जो है आयरन पीस को अंदर खींच रहा है। लेकिन रिपल्सन टाइप में वो दूर करेगा। यहाँ हम लोग चंबक के टाइप अट्रैक्शन टाइप में क्या किया है, यहाँ एक मैग्नेट है, इसको हम लोग जब भी सप्लाई देंगे ये तुरंत क्या करेगा, यहाँ जो आयरन पीस जो है इसको अंदर खींचेगा। जब हम लोग बंद कर दिया है, ये स्प्रिंग जो है इसको बाहर लेके जाएगा। ऐसा एक काम कर रहे। लेकिन रिपल्सन में क्या होगा, यहाँ हम लोग के पास पहले एक मैग्नेट है, ये नॉर्थ साउथ and sorry I will write see here I am going to take this magnet, this is north and south. Here I am going to keep an electromagnet. Okay, this is also going to produce a magnetic field, but this is in opposite direction, south north. जब हम लोग एक नॉर्थ और साउथ ऐसा है, दूसरा मैग्नेट नॉर्थ और साउथ है, ये दोनों अट्रैक्ट हो जाएगा एक दूसरा से। जब हम लोग एक नॉर्थ और नॉर्थ को लेके आ रहे, नहीं तो साउथ और साउथ को लेके आया है, ये दोनों क्या करेगा, रिपेल करेगा, मतलब एक दूसरा से दूर हो जाएगा। यहाँ बिन्नु जो है साउथ पोल नॉर्थ पोल आ गया तो ये छिप जाएगा एक दूसरा से। अगर हम लोग नॉर्थ नॉर्थ कनेक्ट किया तो ये दूर हो जाएगा एक दूसरा से। अगर साउथ साउथ भी ऐसा ही भी हो जाएगा। यहाँ हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले जैसा एक चंबक है एक आयरन है वो नहीं है। यहाँ पहले हम लोग यहाँ एक चंबक को अंदर रखेंगे, मान लीजिए मैंने यहाँ साउथ को यहाँ रख दिया। यहाँ मैंने एक और नया इलेक्ट्रोमैग्नेट डिजाइन किया है, ये जब हम लोग सप्लाई देंगे यहाँ साउथ प्रोड्यूस करेगा, तब क्या होगा, साउथ साउथ रिपेल हो जाएगा, मतलब एक दूसरे से दूर हो जाएगा।
ये रिपल्शन को हम लोग आगे डायरेक्शन डिफ्लेक्शन दिखाने के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं, वो अभी हम लोग देखेंगे। That we can see here. Principle. We know that when two magnets are brought near to each other with their like poles facing each other, there exists a force of repulsion between their poles. अगर दोनों पोल्स सेम है, नॉर्थ या नॉर्थ और साउथ या साउथ है, तो एक दूसरों को दूर हो जाएगा। यही प्रिंसिपल हम लोग यूज कर रहे हैं। दिस प्रिंसिपल इज यूज्ड in the working of repulsion type moving iron instruments. Here you can see ये जो है फिक्स्ड आयरन, ये है फिक्स्ड। Here we are keeping one fixed magnet. Suppose this is a south and this is a moving, this is a coil, circular shape is coil, this is scale, and here this is the डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन, मतलब कैसे जा रहा है। ये जो है पॉइंटर है, मैंने यहाँ ये इंस्ट्रूमेंट को ऐसा कनेक्ट किया हूँ, यहाँ से लेके आया मैंने, कुछ वोल्टेज दे दिया। तब क्या होगा, जब मैंने इसको चालू करूंगा, ये तुरंत क्या करेगा, यहाँ एक और साउथ पोल बन जाएगा। साउथ साउथ क्या हो जाएगा, रिपेल हो जाएगा, मतलब ऐसा आएगा। अगर ये ऐसा आ रहा है तो यहाँ फिक्स हो गया, ये ऐसा जाएगा। ये देखिए यहाँ एक ऐसा है, तो मैंने यहाँ लोड डाल रहा है थोड़ा, ठीक है। तब क्या होगा, ये नीचे जाएगा, ये ऊपर आएगा, अपोजिट में काम करेगा ना। इसकी जैसा यहाँ जब ये एक दूसरा से रिपेल हो रहा है, ये तो नहीं मूव नहीं कर सक पाए, क्यों, ये फिक्स है। एक मिनट, ये आप अच्छे से समझिएगा। यहाँ ये तो फिक्स है, यहाँ ये मूव नहीं कर पाए साउथ, और ये जो है फ्री में है, ये क्या करेगा, इसके चलते ये दूर हो जाएगा। तब यहाँ हम लोग को ऊपर रीडिंग आएगा। यही है रिपल्शन टाइप। Deflection system. Here C represents the fixed coil wound with insulated copper wire on a circular former, also of insulating material. ये भी एक इंसुलेटिंग कॉइल से हम लोग, मतलब वायर से हम लोग बनाया है। A soft iron rod A is fixed to the inner side of the bobbin on which the coil is wound. We are going to fix a coil, soft iron rod, ये हम लोग कॉइल को फिक्स किया है। दूसरा हम लोग पॉइंटर को अटैच किया है। दिस इज अ मूवेबल वन। Both the rods are parallel to each other, are placed axially with respect to the coil. ये दोनों parallel है and these are axial. The spindle of the instrument also carries the pointer, moving over a calibrated scale and the balance weight. The spindle is carrying all the pointer, balancing weight, और अगर हम लोग डैम्पिंग प्रोवाइड किया तो वो भी ये मैनेज करेगा, सबको मैनेज करेगा। कंट्रोल सिस्टम, हियर आल्सो सेम लाइक प्रीवियस, यहाँ भी हम लोग ग्रेविटी कंट्रोल को यूज कर रहे हैं। अभी नया में हम लोग क्या करने जा रहे हैं, स्प्रिंग कंट्रोल भी यूज कर सकते हैं। डैम्पिंग कंट्रोल, डैम्पिंग फ्रिक्शन हम लोग एयर डैम्पिंग फ्रिक्शन यूज कर रहे हैं।
Damping is normally by air friction, which is provided by piston moving in air chamber. Here we are using with the help of air chamber. Why we are not going for eddy current damping? एडी करंट डैम्पिंग सबसे बेस्ट है, अच्छा है ये, लेकिन यहाँ पहले जो मैग्नेट्स है वो मैग्नेट अच्छा से काम नहीं कर पाए ये डैम्प एडी करंट डैम्पिंग के चलते, इसलिए हम लोग एडी करंट को प्रेफर नहीं करते हैं. Operation: when a current to be measured is passed through the fixed coil, it produces its own magnetic field. ये फिक्स्ड कॉइल के अंदर चला गया तो उसका फ्लक्स आएगा. Due to this magnetic field, the two soft iron rods placed inside the coil get magnetized. Similarly, adjacent point along the length of the rod will have the same magnetic polarity. मतलब हम लोग यहाँ फिक्स्ड कॉइल को सप्लाई दे दिया है, वो मैग्नेट जैसा काम करेगा. उसी टाइम में मूविंग कॉइल में जो मैग्नेट है वो दूर हो जाएगा. The force of repulsion between these similar poles formed on the two rods causes the movement of the rod pivoted on a spindle from one which is fixed. एक दूसरा से दूर हो जाएगा. This results into deflection. इसके चलते हम लोग डिफ्लेक्शन को ले रहे हैं. ओके, थैंक यू.